السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ورک، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ مدینہ منورہ بس سانحہ کے مرحومین کو جنت البقیع میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جنازہ، مرحومین کے لیے دعائیں۔ مجالس مقامی انتخابات کے لیے تحفظات کے قواعد سے متعلق جیو جاری، تحفظات کی شرح 50% رہے گی۔ حکومت کی لینڈ ٹرانسمیشن پالیسی آراضی لوٹنے کی پالیسی ہے۔ ہریش راؤ کا الزام، سرکاری آراضی کی فروخت کے ذریعے لوٹ مار۔ ریاست کے 37 ماویسٹوں نے DGP کی موجودگی میں اختیار کی خود سپردگی، بھاری مقدار میں ہتھیار بھی حوالے۔ اور لکڑی کا پل کے پاس دلخراش سڑک حادثہ، کرناٹک ٹرانسپورٹ کی بس نے بائک سوار کو روند ڈالا۔
और अब पेश हैं खबरें तफसील से। मदीने मुनव्वरा बस सानहे के मरहुमीन को बादीदे नम जन्नतुल बकी में सुपुर्दे लहद कर दिया गया। हफ्ते को ज़ोहर में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जनाजा अदा की गई और जन्नतुल बकी में मरहुमीन की तदफीन का अमल अंजाम दिया गया। हैदराबाद से गए हुए मरहुमीन के अफराद ख़ानदान के अलावा रज़ाकाराना तौर पर भी सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाक़ों से हैदराबादी अफराद की बड़ी तादाद नमाज जनाजा और तदफीन में शरीक हुई। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब गए हुए वफ्द में शामिल मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने एक्स अकाउंट पर सुबह में इत्तला दी थी कि मरहुमीन की तदफीन जन्नतुल बकी में अमल में आएगी। नमाज जनाजा की इमामत शेख अब्दुल बारी अल स्वेती ने की। रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़यादत में गए वफ्द ने हिंदुस्तानी सफारतखाने के साथ तालमेल के ज़रिए सऊदी हुक्काम के साथ मुसलसल इस सिलसिले में बातचीत की थी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नज़ीर, जो इस मामले को सिफारती सतह पर सुलझाने सऊदी अरब गए थे, ने भी इसकी तकमील पर इजहार इत्मीनान किया। सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सुहेल एजाज खान और दूसरे सिफारती अमले ने सऊदी हुक्काम के साथ तालमेल करते हुए इस मामले को अंजाम तक पहुँचाया ताकि मरहुमीन की तदफीन का अमल जन्नतुल बकी में अंजाम दिया जा सके। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मरहुमीन के तकरीबन 35 से ज़्यादा अरकान ख़ानदान को सऊदी अरब ले जाया गया है। तदफीन के मौके पर भी मरहुमीन के अफराद ख़ानदान के अलावा दूसरों की आंखें भी अश्कबार थीं। तेलंगाना के वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तदफीन का अमल अंजाम पाने के बाद अपने प्याम में तेलंगाना हुकूमत, सऊदी हुकूमत, सऊदी अरब में मुतय्यन हिंदुस्तानी सफारतखाने के ओहदेदारों से ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम वहाँ तेलंगाना हुकूमत ने मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के क़वाइद से मुताल्लिक़ GO 46 जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 50% कोटे की हद के तहत तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाएगा। सरपंच के तहफ़्फ़ुज़ात 2011 की मरदमशुमारी पर होंगे। BC सरपंच 2024 तबक़ात सर्वे के मुताबिक होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन श्रीधर की दस्तखत से जारी 6 सफ़हात पर मुश्तमिल इस हुक्मनामे में पंचायत राज एक्ट 2018 का हवाला दिया गया। हुक्मनामे में हतमी तौर पर यह कहा गया कि तहफ़्फ़ुज़ात की शरह 50% होगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल तेलंगाना में गेम चेंजर साबित होंगे। नायब वज़ीर आला ने कहा कि आलमी तौर पर इन इंटीग्रेटेड स्कूल्स को डिज़ाइन किया गया है। रियासत के हर असम्बली हल्के में यह स्कूल तामीर किए जा रहे हैं। हर स्कूल पर 200 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। इन स्कूल्स में तमाम सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। साबिक वजीर और BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने हुकूमत की लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी को ताज़ा घोटाला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि यह पॉलिसी लैंड ट्रांसमिशन नहीं बल्कि लैंड आराजी लूटने की पॉलिसी है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि सनती इलाकों में तकरीबन 10,000 एकड़ आराजी को फरोख्त करने की साजिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी सिर्फ लूटमार पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। BRS के दौरे हुकूमत में सरमायाकारी की खबरें सुनी जाती थीं, लेकिन आज कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आराजियात की फरोख्त की खबरें सुनी जा रही हैं। कांग्रेस हुकूमत
गज से लेकर हजारों एकड़ तक आराजी फरोख्त कर रही है। रेवंत रेड्डी ने खुद कहा था कि आराजियात के फरोख्त होने से स्कूल और कब्रिस्तान के लिए भी आराजियात नहीं बचेंगी। हरीश राव ने सवाल किया कि 5 लाख करोड़ की आराजी सिर्फ 5,000 करोड़ में क्यों फरोख्त की जा रही है? क्या बाकी 4,95,000 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं किया गया है? बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि जारी माह की 29 तारीख को दीक्षा दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। बीआरएस लीडर ने दीक्षा दिवस को तेलंगाना की तारीख का एक अजीम वाकया करार दिया। पार्टी लीडर्स को हिदायत देते हुए केटीआर ने कहा कि 1.5 दहाई कबल पार्टी सरबराह केसीआर ने बड़ी कुर्बानी के साथ पहल करते हुए रियासत तेलंगाना हासिल किया था। केटीआर ने तेलंगाना की तारीख के इस अजीम वाकये को यादगार बनाने के लिए दीक्षा दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की हिदायत दी है। केटीआर ने पार्टी के अरकान मुकर्रना, जिले सुदूर, अरकान पार्लियामेंट और आमिला के अरकान के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और दीक्षा दिवस के इनेकाद से मुतालिक जरूरी हिदायत दी। केटीआर ने तजवीज़ पेश की कि 26 नवंबर को तमाम ज़िली मराकज़ में पार्टी कायदीन दीक्षा दिवस इजलास की तैयारी के लिए इजलास मुनक्किद करें। तमाम लीडर्स को इसमें मदऊ किया जाए। एक दिन पहले 28 नवंबर को पार्टी दफातर के अहाते में सजावट की हिदायत दी गई है। तेलंगाना तहरीक के जहदकारों को भी खिरात पेश किया जाएगा। इजलास में दीक्षा दिवस के मौके पर तेलंगाना तहरीक से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। रियासत के मजीद 37 माविस्टों ने खुद सुपुर्दगी अख्तियार की है। डीजीपी श्रीधर रेड्डी की मौजूदगी में इन माविस्टों ने अपने हथियार भी पुलिस के हवाले कर दिए। खुद सुपुर्द होने वाले माविस्टों में सेंटर कमेटी कारकुन आज़ाद उर्फ नारायणा और महलूक माविस्ट हेड माका साथी इर्रा भी शामिल है। खुद सुपुर्द माविस्टों ने 303 AK-47 राइफलें और कारतूस भी हवाले किए। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि 37 माविस्टों ने खुद सुपुर्दगी अख्तियार की है। इनमें 3 अहम कमांडर शामिल थे। उन्होंने बताया कि इस वक्त तकरीबन 59 माविस्ट रोपोश हैं। इनमें 70-80% की उम्रें 50 साल के ऊपर हैं। उन्होंने इन रोपोश माविस्टों से भी खुद सुपुर्द होने की अपील की है। सीपीआई माओइस्ट के बैंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके 37 माओवादी अभी आज सरेंडर हुए हैं। हमारे 37 माओवादी सरेंडर हुए हैं। उसमें 3 माओवादी जो हैं वो वरिष्ठ लोग हैं, नेता हैं जो स्टेट कमेटी मेंबर के दर्जा रखते हैं। उसमें जो है अप्पासी नारायणा जो 32 साल से पार्टी में है और साथ में वो टेक्निकल टीम का सेक्रेटरी है, इंचार्ज है। और देन सेकेंडली जो है अपना आज़ाद है, कोयड़ा सांबैया एलियास आज़ाद, जो वो भी 31 साल से अंडरग्राउंड है, अज्ञात है, वो भी बाहर आ गया है। वो बहुत अपने नॉर्थ तेलंगाना के 2-3 जिलों में उनका बहुत अच्छा पकड़ था। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काडर है, वो भी बाहर आ गया है। और साथ में इर्राल जो साउथ बस्तर के एरिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है, वरिष्ठ लीडर है, वो भी बाहर आ गया है। तो ये इसका एक मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट कामयाबी है जो ये बाहर आ गए हैं। और पार्टी सीपीआई माओइस्ट पार्टी के लिए थोड़ा बहुत क्षति है। तेलंगाना में अभी 59 लोग यूजी हैं, 59 अभी अंडरग्राउंड है। और उसमें भी 75 to 80% जो हैं जो 50 और 50 साल के ऊपर हैं। हम लोग उनको कॉल दे रहे हैं कि बाहर आ जाओ, आप भी गवर्नमेंट के सामने आत्मसमर्पण कर लो और सोशल मिलियो में मिल जाओ। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुजाला कांता ने सवाल किया है कि क्या केटीआर अवामी अदालत का सामना करने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए गुजाला कांता ने कहा कि केसीआर, केटीआर और हरीश राव वो चोर हैं जिन्होंने रियासत को लूटा। केटीआर को 2014 से पहले और इसके बाद के असासे अवाम के सामने लाने चाहिए। 2014 से पहले केसीआर, केटीआर और कविता एक घर में रहा करते थे। हैदराबाद में इस खानदान के पास 1 एकड़ जमीन तक नहीं थी। वजीर आला बनने के बाद केसीआर के पास 600 एकड़ आराजी कहां से आई? हरीश राव के पास आज हजारों एकड़ की आराजी कहां से आई? उन्होंने इंकशाफ किया कि केसीआर खानदान इस वक्त 30,000 एकड़ आराजी का मालिक है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के आमोर और कोचादामन हल्क़जात में जलसे इजहार तशक्कुर से खिताब करते हुए राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया है। आमोर में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 5 अरकान असम्बली के लिए पार्टी का दफ्तर खोला जाएगा। 6 माह के अंदर दफ्तर का काम शुरू होगा। हफ्ते में 2 बार हमारे अरकान असम्बली अवाम से मुलाकात करेंगे। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि वो 6 माह में 1 बार बिहार का दौरा करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम बिहार की नई हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं। हम उनके साथ ताउन के लिए तैयार हैं।
لیکن सीमांचल के साथ इंसाफ होना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब में यह भी कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की तरक्की, तालीम, सेहत, सड़क, रोजगार के लिए मजबूती से लड़ती रहेगी। हमारी लड़ाई आइन, इंसाफ और मसावात के लिए है और ये जद्दोजहद मुसलसल जारी रहेगी। यहाँ से सिर्फ सरवर आलम की कामयाबी नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर आपके इत्तेहाद की कामयाबी हुई है, आपके सियासी शऊर की कामयाबी हुई है और आपने सारी दुनिया को पैगाम दिया है कि जो लोग कल तक ये कहते थे इस मजलूम कौम से कि तुम अपनी सियासी क़ियादत नहीं खड़ा कर सकते, आपने उन तमाम को जवाब दे दिया कि ये काम हो सकता है और कोचा दामन और सीमांचल की जनता ने अपनी दुआ और अपने वोटों से अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने के लिए आपने दोबारा यहाँ पर अपनी क़ियादत को खड़ा किया है। मैं आपको इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान कौशिक यादव ने सवाल किया है कि क्या मंदिरों पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कौशिक ने कहा कि बीजेपी हिंदू मंदिरों से क्यों दुश्मनी रखती है, जबकि हिंदुओं के नाम पर वोट मांगती है। कौशिक यादव ने कहा कि बीजेपी देवी देवताओं पर भी जीएसटी लगा रही है। मरकज ने जीएसटी के लिए मंदिरों को नोटिस भेजे हैं। रियासती बीजेपी के लीडर्स को इसका जवाब देना चाहिए। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने अवाम को साइबर जराइम से मोहतात रहने का मशवरा दिया है। चारमीनार के पास साइबर जराइम से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के लिए जागरूक हैदराबाद सुरक्षित हैदराबाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूली तलबा और असातिज़ा ने भी शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस की जानिब से हर मंगल और हफ्ते को इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है ताकि अवाम में साइबर जराइम से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जा सके। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यौमिया तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान साइबर जराइम की वजह से हो रहा है। उन्होंने शुरका से अपील की कि अपने रिश्तेदारों को भी साइबर जराइम से वाकिफ करवाएं। किसी भी तरह के वाक़े के सिलसिले में 1930 पर इत्तला दें। इस मौके पर शुरका को यह अहद दिलाया गया कि वो अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात किसी को भी फराहम नहीं करेंगे। इस प्रोग्राम में एडिशनल सीपी क्राइम IPS M श्रीनिवास, एडिशनल DCP M माजिद, साउथ जोन के ACPs P चंद्रशेखर, C चंद्रशेखर, G श्याम सुंदर और MA जावेद भी मौजूद थे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत फ़नी तालीम को ख़ास अहमियत दे रही है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डायमंड जुबली तकारीब के सिलसिले में वो ग्लोबल एलुमनी इजलास से खिताब कर रहे थे। इस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील दुनिया भर में फैले साइंसदान, टेक्नोक्रेट और सरकर्दा अफराद ने इसमें शिरकत की। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर V बालकृष्ण रेड्डी, वाइस चांसलर प्रोफेसर T किशन कुमार रेड्डी और दूसरे ओहदेदार भी इस तकरीब में शरीक थे। जनूबी हिंद की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे निज़ामिया के जलसे तक़सीम असनाद में 670 कामिल फ़िक़्ह, कामिल हदीस, कामिल तफ़सीर, फ़ाज़िल, आलिम, मौलवी कामयाब को असनाद, तराई तमग़े और एज़ाज़ात दिए गए। इसके अलावा तकमील हिफ़्ज़ कुरान के 330 तलबा के अलावा डिप्लोमा इन अरबिक, क़िरात, सबा क़िरात, इमाम आसिम कोफ़ी, नायब क़ज़ात, ख़िताबत, इमामत और मुअज़्ज़नी कोर्सेस की तकमील करने वालों को भी सनदें अता की गईं। अमीर जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने तक़सीम असनाद कलीदी खुतबा दिया। शेखुल जामिया मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह ने बानी जामिया फ़ज़ीलत जंग हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से 1874 में कायम करदा इस इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ अदवार और बानी जामिया की खिदमात पर खिताब किया। नायब शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक इम्तिहानात में 10,290 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मोतमद जामिया मौलवी अहमद मोहिउद्दीन खान ने मालियाती रिपोर्ट पेश की। तालीमी साल 2025 में वजीफ़े के हकदार 647 तलबा को दाखिला दिया गया। जामिया के दारुल इक़ामा में 700 तलबा की गुंजाइश है जिन्हें मुफ्त क़याम और ताम की सहूलत हासिल है। जामिया के कुलियतुल बनात में 432 तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं। एजाज़ी निशानात से कामयाब तलबा और तालिबात के लिए मुख्तलिफ गोल्ड मेडल्स दिए गए, जिसमें सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से दिए जाने वाले गोल्ड मेडल्स भी शामिल हैं। इस जलसे तक़सीम असनाद में मजलिस के रुकन असम्बली मीर ज़ुल्फ़िकार अली,
सरकर्दा उलमा इकराम, मशाइखीन इज़ाम, तलबा, तालिबात और कदीम तालिबात की कसीर तादाद शरीक थी। जामिया के मराक़िबुल इख्तियारात मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद ने निज़ामत की। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने उम्मीद पोर्टल के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में हज हाउस में एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है ताकि इसका स्टाफ मुतवल्लीन व मस्जिद कमेटी और दूसरों की रहनुमाई कर सकें। अलावाजी उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में रियासत तेलंगाना के तमाम अजला के लिए भी एक कमेटी तश्कील दी गई है जिससे इस्तेफादा कर सकते हैं। उनका कहना था कि कई अफराद को दस्तावेजात के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो उनसे रब्त करके मसाइल की यकसुई कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वक्फ बोर्ड में तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिसे अपलोड किया जा रहा है, जबकि कामों में तेजी पैदा करने 50 अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ पहले से ही काम कर रहा है। अभी इसमें 20 से 30 का मजीद इजाफा किया जाएगा। उर्दू जबान न सिर्फ राब्ता बल्कि अमन की जबान है। यह महज तसल्ली की बात नहीं बल्कि इस ज़बान का वजूद और उसकी अहमियत का अंदाज़ा आज के इस दौर में किया जा सकता है जहां ज़ुबान मजहब की बुनियाद पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस के ज़र एहतमाम एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया जिसमें सरकर्दा प्रोफेसर्स, मुहक्किकीन, अदीब, सहाफ़ी, जहदकार और सरकारी ओहदों पर फायज़ अहम शख्सियात ने शिरकत की। सुबह से शाम तक जारी रहे इस तवील प्रोग्राम्स में उर्दू ज़बान से उर्दू वालों की सर्द मोहरी, उर्दू ज़रिए तालीम, हुकूमत और दीगर इदारों के तर्ज़ अमल पर मुबाहिस हुए। इस्तक़बालिया कमेटी के सदर नशीन एस ए हुदा IPS रिटायर्ड ने कलीदी खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि आज जहां इंतशार की कैफियत है और समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, उर्दू शुमाल से जनूब, मशरक़ से मगरिब सारे मुल्क को जोड़ने और अमन की निगहबान कार की जामे मुतबादिल है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से वाबस्ता प्रोफेसर्स और जहदकारों ने मकाले पेश किए, पैनल मुबाहिस भी हुए। इख्तितामी तकरीब में सदर नशीन रियासती अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने इनामात तक़सीम किए। एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो कौमी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया आज उर्दू की जानिब से, चूँकि यहाँ इश्यूज़ हो रहे हैं, स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं, टीचर्स कम होते जा रहे हैं, इनफैक्ट उस्मानिया यूनिवर्सिटी से भी उर्दू ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। उसी सिलसिले में गौर व फ़िक्र की लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किया गया है ताकि कैसे फिर उर्दू को अपनी जगह दिलाई जाए और बच्चों में और टीचर्स में इसके लिए शौक़ जगाया जाए। उसी सिलसिले में कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किया गया है कौमी की तरफ से और उम्मीद है कि यहाँ से जो रिकमेंडेशंस निकलेंगे वो सरकार तक पहुँचाएंगे हम लोग और इंशाअल्लाह सरकार से तालबा करेंगे कि भाई उर्दू के लिए सरकार कुछ करें। भारत की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का हिस्सा के उन्वान से एक जलसे-आम का बरोज़ इतवार 23 नवंबर को बाद मगरिब हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के दीनी और तहक़ीक़ी इदारे अल महदुल आली अल इस्लामी के ज़र एहतमाम 3 रोज़ा कौमी सेमिनार के आखिरी रोज़ ये जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस अहम जलसे से मुल्क के नामवर व मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दारुल उलूम देवबंद के मौलाना सुफियान कासमी, नदवे के अलावा मौलाना बिलाल हुस्न नदवी, अमीर जमाते इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अराकीन पार्लियामेंट इमरान मसूद, आगा रूहुल्लाह महदी, मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी, मौलाना अबू तालिब रहमानी के अलावा रियासती वजीर जी विवेक, रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद, हुकूमत के नुमाइंदे फ़हीम कुरैशी शरीक होंगे और खिताब करेंगे। अवामुन्नास से अपील की गई है कि इस जलसे में शरीक होकर इसे कामयाब बनाएं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए जिससे 80 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक हासिल करने वालों ने रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया ज़फ़र खान, कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। महबूब नगर में 50 लाख रुपए की लागत से ईदगाह जमियतुल हदीस के तौसी कामों का रुकन असम्बली
पानम श्रीनिवास रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। अक़लियती बहबूद के लिए मंजूरा 45 करोड़ रुपए बजट से इस मकसद के लिए 50 लाख रुपए की रकम मख्तस की गई। रुकन असम्बली ने कहा कि जिले में अक़लियती बहबूद के लिए मंजूरा कामों की तकमील के लिए वो कोई कसर न रख छोड़ेंगे। जारी करदा रकम से ईदगाह की बाउंड्री वॉल और दीगर तामीराती काम अंजाम दिए जाएंगे। सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि ईदगाह के बाउंड्री वॉल के लिए एक तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा था। रुकन असम्बली के हाथों इस काम का आगाज हो रहा है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो ज़िले की तरक्की बिलखुसूस अक़लियती बहबूद के लिए दरकार मंजूरियाँ दे रहे हैं। जमीयत के अमीर मौलाना ज़ियाउद्दीन ने खैर मकदम किया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कांग्रेस के ज़िले कायदीन मोहम्मद सिराज कादरी, सादतुल्लाह जुनैदी, ख्वाजा पाशा, मोहम्मद अज़मत अली और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को धमकियामेज़ ईमेल्स की मौसूली के बाद गैर मामूली चौकसी बरती जा रही है। एयरपोर्ट पर CISF की तरफ से मुसाफिरीन के सामान की भी जांच की जा रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की तल्लात मौसूल हुई थीं। इसी के तनाजुर में गैर मामूली चौकसी देखी जा रही है। मीर चौक पुलिस स्टेशन के हदूद में मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। इमारत के पहले फ्लोर पर लगी आग ने घर के सामान को खाकस्तर कर दिया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और मंजसी कॉरपोरेटर्स मुकाम वाक़या पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। इस मौके पर मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन अफंदी और कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि मगर की बौली के इलाके में मकान में आग लगी थी। भारी माली नुकसान हुआ है, ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि घर के एक फर्द की तरफ से इस्तरी खुली रखकर भूल जाने की वजह से ये वाकया पेश आया है। राजेंद्र नगर के आरामगढ़ चौराहे के पास बलदिया के टाउन प्लानिंग बुलडोजर ने फुटपाथ पर कायम गैर मजाज शेड्स को मुनहदिम कर दिया। बताया जाता है कि ट्रैफिक में मुबैना मुश्किलात के पेश नज़र ये कार्रवाई की गई। इस मौके पर पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त देखा गया। लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन के पास हुए दिलकराश हादसे में एक बाइक सवार हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट की बस ने महाराष्ट्र की रजिस्टर्ड बाइक को टक्कर दे दी। नामालूम बाइक सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। सैफाबाद पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। बस ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। निजामाबाद में दोस्त बनकर सरखे की वारदात अंजाम देने वाली शातिर खातून को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक गायत्री नामी खातून ने नकली चाबी की मदद से सरखे की वारदात अंजाम दी। ताहम घर के मालिकान ने खुफिया कैमरा लगा रखा था क्योंकि घर से अहम सामान गायब हो रहा था। आखिरकार गायत्री की सरखे की वारदात खुफिया कैमरे में कैद हो गई। 18 तोले के तलाई जेवरात और 1 किलो चांदी का सरखा किया गया था। पुलिस ने कैमरे में कैद हुए मंजर की बुनियाद पर गायत्री को गिरफ्तार किया है। मजीद तहकीकात जारी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मदीने मुनव्वरा बस्सानेह के मरहूमीन को जन्नतुल बकी में सुपुर्द लहद कर दिया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जनाजा, मरहूमीन के लिए दुआएं। मजालिस मकामी इंतखाबात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के क़वायद से मुताल्लिक़ जियो जारी, तहफ़्फ़ुज़ात की शरह 50% रहेगी। हुकूमत की लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी आराजी लूटने की पॉलिसी है। हरीश राव का इल्जाम, सरकारी आराजी की फरोख्त के जरिए लूटमार। रियासत के 37 माविस्टों ने डीजीपी की मौजूदगी में अख्तियार की खुद सुपुर्दगी, भारी मकदार में हथियार भी हवाले। और लकड़ी का पुल के पास दिलकराश सड़क हादसा, कर्नाटक ट्रांसपोर्ट की बस ने बाइक सवार को रौंद डाला। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।